Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel CS Ansar. This is CS Tuti Mahajan. Today, I'm going to discuss mandatory UDIN at the time of upload of tax audit reports. Let's see. UDIN CBDT to validate UDIN at the time of upload of tax audit reports. The Central Board of Direct Taxes (CBDT) to validate UDIN generated from ICAI portal at the time of upload of tax audit reports. The Institute of Chartered Accountants of India, in its Gazette notification dated 2nd August 2019, had made generation of UDIN from ICAI website mandatory for every kind of certificate, tax audit report, and other attestation made by their members as required by various regulators. This was introduced to curb fake certifications by non-CAs misrepresenting themselves as chartered accountants. तो 2 अगस्त 2019 को ही नोटिफिकेशन के अंदर यूडीआईएन जो था वो हर जगह मैंडेटरी कर दिया गया था, चाहे वो सर्टिफिकेट है, चाहे वो कोई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है या फिर कोई अटेस्टेशन है, तो सबके ऊपर यूडीआईएन जो था वो मैंडेटरी कर दिया गया था. Integration with government bodies. In line with the ongoing initiatives of the Income Tax Department for integrating with other government agencies and bodies, Income Tax e-filing portal has completed its integration with the ICAI portal for validation of UDIN generated from ICAI portal by the Chartered Accountants for documents certified or attested by them. अगर आप देखो तो यूडीएन पोर्टल के ऊपर एक तो आईसीआई का हम लोगों के लिए पोर्टल है मेंबर्स लॉगिन, कि हम लॉगिन करेंगे, हम वहां पर यूडीआईएन को क्रिएट करेंगे, और साथ ही में अदर रेगुलेटरी बॉडीज के लिए है कि वो वहां से यूडीआईएन को चेक कर सकते हैं कि वाकई में जो हमने यूडीआईएन दिया है वो सही है या वो फेक नंबर किसी ने वहां पर दे दिया. तो इसके लिए आईसीआई पोर्टल के ऊपर जो यूडीआईएन की जो वेबसाइट है जिसके थ्रू हम लोग यूडीआईएन नंबर क्रिएट करते हैं, तो उसकी इंटीग्रेशन हुई अदर बॉडीज के साथ कि ताकि जो अदर बॉडीज हैं, जैसे हमने यूडीआईएन दिया किसी सर्टिफिकेट के लिए, मान लो वो बैंक के लिए दिया या एम्बेसी के लिए दिया, तो वो वहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि यूडीआईएन जो है वो नंबर वो सही डाला हुआ है. UDIN mandatory by Income Tax e-filing portal. It may be noted that in consonance with the above requirement, Income Tax e-filing portal had already effected mandatory quoting of UDIN with effect from 27 April 2020 for documents certified or attested in compliance with the Income Tax Act 1961 by a chartered accountant. तो उसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि 27 अप्रैल 2020 को उन्होंने और ज्यादा मैंडेटरी कर दिया कि यूडीआईएन को कहीं पे भी आपको कोट करना है वो कंपलसरी है, उसके बिना आपका एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो है वो आपका वैलिडेट नहीं होगा. With this system level integration, UDIN provided for the audit report certificate submitted by the chartered accountants in the e-filing portal shall be validated online by the ICAI. This will help in weeding out fake or incorrect tax audit report not duly authenticated by the ICAI. तो बेसिकली इन सब का पर्पस क्या है कि जो कि नॉन सीएस हैं, जो अपने आप को बताते हैं कि हम सीएस हैं, तो उस चीज को वीड आउट करने के लिए यूडीआईएन जो है वो लाया गया है. अब हम देखते हैं कि पहले क्या होता था. If for any reason a chartered accountant was not able to generate UDIN before submission of audit report or certificate, the income tax e-filing portal permits submission subject to the chartered accountant updating the UDIN generated for the form within 15 calendar days from the date of form submission in the income tax e-filing portal. तो पहले क्या होता था, हमने अगर कोई मान लो ऑडिट रिपोर्ट अपनी दी है, तो ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर कहीं अंदर हमें लिखना नहीं होता था यूडीएन. तो हम क्या करते थे, मान लो हमने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दी है तो हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दे दें, तो हम डेट नोट कर लें कि 15 डेज के अंदर अंदर हमें जो है उसका यूडीएन क्रिएट करके अपने पास उसका रख लेना है. If the UDN for the audit report or certificate is not updated within the 15 days provided for the same, such audit report uploaded shall be treated as invalid submission. तो अगर 15 दिन के अंदर आपने UDN नंबर नहीं दिया तो वो invalid माने जाएगी. बट इसके अंदर अब एक नई चेंज आई है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अपलोड के टाइम के ऊपर अब एक नई चेंज आई है. वो क्या है वो हम देखते हैं.
प्रैक्टिकली अब हम देखते हैं क्या चेंज आया है। बेसिकली आपको यूडीएन तो पहले भी देना होता था, यूडीएन आपको अब भी देना है, लेकिन पहले यूडीएन देने के लिए क्या था कि पहले था आपने अपलोड कर दिया, चाहे आप अपलोड करने के बाद यूडीएन क्रिएट कर लो या फिर अपलोड करने के 15 डेज के अंदर आप यूडीएन को क्रिएट कर लो। बट अब आपको क्या है कि जब आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करनी है तो उससे पहले आपको यूडीएन नंबर जो है वो क्रिएट करके रखना है। जैसे हमने मान लो अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की एक्सएमएल फाइल बना ली, हम जब उसको अपलोड करने लगेंगे तो सीए के लॉगिन से जब हम उसको करेंगे तो यूजर आईडी हम क्या लिखेंगे ARCA, आगे अपना मेंबरशिप नंबर, पैन नंबर ऑफ द एसएससी, पैन नंबर ऑफ द सीए, फॉर्म नेम जो हमने फॉर्म जो अपलोड करना है, सबमिशन मोड हमारा क्या है, फाइलिंग टाइप ओरिजिनल और रिवाइज्ड, असेसमेंट ईयर 2020-21। तो यहाँ पर यूडीआई नंबर आपको देना मैंडेटरी है। जैसे ही हमने इसके बिना कंटिन्यू किया, उसने हमें मैसेज क्या दे दिया, एज पर ICAI नोटिफिकेशन कोटिंग ऑफ यूडीआई इज मैंडेटरी फॉर दिस फॉर्म। तो जैसे ही हम उसके ऊपर यूडीएन का नंबर वो देंगे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, तभी हम आगे चलेंगे। तो जब तक हम यहाँ पर यूडीएन नहीं देते हैं तो हम इसको अपलोड नहीं कर पाएंगे। सो दैट मीन्स क्या हुआ, जैसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड करते टाइम आपको पहले 4 चीज अपने पास रखनी होती थी। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की एक्सएमएल फाइल, एक्सएमएल फाइल के ऊपर सिग्नेचर फाइल, सीए के सिग्नेचर लगा के, थर्ड वन उसकी बैलेंस शीट और उसका P&L अकाउंट, और इनकेस अगर कोई और रिपोर्ट उसके अंदर सबमिट होनी है तो वो। अब जहां आपकी पहले 4 मैंडेटरी थी, एक फोल्डर के अंदर आप डालते थे, वहीं पर आप सबसे पहले 4 के साथ एक और यूडीएन नंबर को क्रिएट करके पहले रखो, देन उसको हम अपलोड करेंगे। जब हम अपलोड करेंगे तो हम पहले जैसे ही अपना लॉगिन करेंगे वहां पर हम उसका यूडीएन का नंबर देंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद वो सारी चीजें हम वहां पर अपलोड कर देंगे। और इसका जब हमने यूडीएन का नंबर जो क्रिएट करना है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए, वो सेम वे में करना है जैसे हम पहले करते थे। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, टोटल टर्नओवर चाहिए, नेट प्रॉफिट वो देना पड़ेगा, WDV ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, असेसमेंट ईयर, फर्म नंबर, सीए फर्म का जो फर्म नंबर है वो, और पैन ऑफ द एसएससी। तो वो हमें यहाँ पर डिटेल्स देके, तो इस तरह से हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए यूडीएन नंबर जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। दैट मीन्स टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए यूडीएन क्रिएट करना है, यूडीएन को क्रिएट करने के लिए आपको ये सब डाटा अपने पास रखना है। तो ये डाटा रखो, यूडीएन क्रिएट करो, यूडीएन क्रिएट करके वहां पर यूडीएन का नंबर दो, देन अपने फोल्डर में से आपने जो वहां पर रखी हुई है, जब आप कंटिन्यू करोगे तो कंटिन्यू करके वहां पर एक्सएमएल फाइल को अटैच करो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की, उसकी एक्सएमएल फाइल की सिग्नेचर फाइल को अटैच करो, बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट्स को अटैच करो और उसको सबमिट करो। और जैसे आप सबमिट करोगे तो आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है वो फाइल हो जाएगी। और देन उसके बाद आपको क्या करना है, एसएससी के अकाउंट से लॉगिन करके आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। बेसिकली एक्सेप्ट ही करना है, अगर आप कर रही हो तो आपको एक्सेप्ट ही वहां से करना है। सो ये एक चेंज आई है जो कि अभी एक दिन पहले ये वाली एक चेंज आई है जो कि उसने मैंडेटरी कर दिया है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड करते टाइम आपको वहां पर यूडीएन जो है वहां पर मेंशन करना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Sansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan, CS Sansar. Thank you.